Hi, welcome again to the class of political science. And in the last lecture, we were studying about the three dimensions of the equality, three dimensions of the equality we were studying. Political equality, I have told you. Then I have told you about the social equality, and we have started the third one also, that is economic equality. In economic equality, I have told you that government should try to bring the economic equality among the people of the country, and some ways they have told here. There are some concepts regarding to bring the economic equality that we will study. That is also the part of the economic equality. Exam में अगर suppose they ask you what are the three dimensions of equality, so you have to write about all these three: political equality, social equality, economic equality, according to the marks. 6 marks questions are there like that. But suppose if they ask you separate wise, so you have to answer according to that. Now two more concepts related to economic equality, to bring the economic equality. These two ideas are Marxism and liberalism. These are the political ideology of the our times. आज के हमारे विचार हैं ये आज के times के Marxism, political ideology on on the economic equality, that is given by the Karl Marx in the junior classes. You have read about this person Marx जो था, he was an Karl Marx was an important thinker of the 19th century, and he told that main cause of this entrenched inequality, entrenched मतलब ये जो खाईनुमा असमानता है लोगों में, that is because of the private ownership, निजी मालिकाना हक है लोगों का on the important economic resources such as land, forest, oil, as well as some other forms of property. He told that अगर ये जो private ownership है, that not only make the owners wealthy, but it also gave them political power. I am telling about theory of Marxism on the economic equality. ये क्या चाहते हैं, कैसे economic equality आएगी? तो उन्होंने ये कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप है, not only make the owners of the property wealthy, but also gave them political power, and with this power these people can also bring influence on the policies of the government, on the laws of the government, and that thing is a threat to the democratic government. Marxist and socialist दोनों की विचारधारा लगभग सेम ही है. I will tell you about socialism later on in today's video only. Marxists and socialists feel that ये जो economic equality है, they also bring support to some other types of social inequality. ये समाज के कुछ और inequalities को और बढ़ावा देती है, जैसे differences of rank, सामाजिक रुतबा, privileges, विशेषाधिकार, ये भी इनको भी ये बढ़ावा देती है. कौन? economic inequality. They provide support to some other forms of social inequality. So what the Marxists have told, that to tackle the inequality in the society, we should look beyond the equal opportunities. उससे आगे जाके देखना, सबको समान अवसर प्रदान करना, उससे आगे जाके देखना है हमको. और we should try we should ensure that public should have the control over the essential resources and on the forms of property. These views given by the Marxists are debatable. ये बहस का मुद्दा है, and but
बहस हो रही है, बट दे हैव रेज सम इम्पोर्टेंट इश्यूज. For that we have to find out some solutions. That was the idea given by the Marxist for the political for the economic inequality. Now another political ideology, that is liberalism. वो लोग क्या मानते थे टू ब्रिंग द इकोनॉमिक इक्वलिटी. इनका जो आइडिया है लिबरल्स का, दैट इज इन अपोज ऑफ मार्क्सिज्म. लिबरल्स कहते हैं कि देयर शुड बी कंपटीशन बिटवीन द पीपल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू रिवार्ड दैम. उनको लाभांश सोसाइटी के अंदर उनका फ़ायदा दिलाने के लिए, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए. दैट इज़ एफिशिएंट एंड द फेयर वे. वो एफिशिएंट मतलब कारगर तरीका, और फेयर मतलब वो उचित तरीका है. लिबरल्स बोलते हैं कि स्टेट हैज़ टू इंटरफेयर टू एंश्योर minimum standard of living and equal opportunities for all. स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द पीपल, बट बाय इटसेल्फ अपने आप में दिस इज नॉट इनफ टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू सोसाइटी. लेकिन ये अपने आप में समाज में समानता और न्याय दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है. Competition between the people in free and fair condition. फ्री मतलब आज़ाद, स्वतंत्र, फेयर, उचित तरीके से हालातों में अगर कंपटीशन होगा तो दैट इज़ द, इनके अकॉर्डिंग, लिबरल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द जस्ट एंड एफिशिएंट वे. जस्ट मतलब न्यायपूर्ण, एफिशिएंट मतलब कारगर तरीका होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिवार्ड्स इन अ सोसाइटी. फ़ायदा, लाभ समाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का. अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, जब तक कंपटीशन ओपन एंड फ्री होगा, खुला और कहते हैं कि सबके लिए ओपन होगा, खुला होगा और फ्री होगा, तो इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. मतलब इतनी जो दूरियां बन रही है, असमानता बन रही है समाज के अंदर, वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और इनइक्वलिटीज़ नहीं बनेंगी, और people will get the due reward for their talents and efforts. और लोगों को अपने टैलेंट्स और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिवार्ड्स मिलेंगे, लाभ मिलेंगे. सो उन्होंने बोला कि कंपटीशन होना चाहिए. जब तक ये होगा, inequalities will not appear in the will not become so entrenched. ये वर्ड आ रहा है entrenched. entrenched का मतलब होता है समथिंग वेरी बिग वन, एक काफ़ी गहरा. इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज़ अनट्रेंच्ड. खाई नुमा हिंदी में एक वर्ड होता है, उसको बोलता है, यू कैन से एक बहुत बड़ा गैप बना देना, खाई नुमा बिटवीन द पीपल. वो यहाँ पर अनट्रेंच्ड का मतलब है. और लिबरल्स के बारे में सम मोर व्यूज़ दे हैव गिवन हियर रिगार्डिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी. लिबरल्स के अकॉर्डिंग कंपटीशन इज़ द जस्ट, मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे. एक सबसे न्यायपूर्वक और कारगर तरीका है फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स for the jobs, for the admission to the educational institution. For example, हमारी कंट्री के अंदर many students wants to get admission to the professional courses, and entry जो होती है उनके अंदर courses के अंदर, that is highly competitive. ज़बरदस्त प्रतियोगिता होती है उसकी, and time to time Government of India and the courts also make some rules and regulation for this educational institution, for the entrance exam, to make sure that everybody will have a fair and equal chance. सबको
उचित बराबर का मौका मिलेगा टू डू द कंपटीशन. उसके बावजूद भी then also so many people do not get admission, but then also this way of competition for the distribution of limited seat is considered a fair way. सोशलिस्ट के उल्टा ऑपोजिट टू सोशलिस्ट लिबरल्स जो थे दे डू नॉट बिलीव दैट वो ये नहीं मानते थे दैट पॉलिटिकल इक्वलिटी, economic equality and social inequalities have got some link. इनके बीच में कोई लिंक है, वो इसको नहीं मानते थे. और वो they believe that inequalities in each of these spheres, ये जो तीन मैंने जो आपको inequality के स्पेयर बताएं, political inequality, economic inequality and social inequalities, यहाँ पर गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि वी हैव टू टैकल ऑल दिस ऑल दिस inequalities in a appropriate manner. इसको हमको बहुत तरीके से इन सब समस्याओं को टैकल करना है. और लाइक दैट दे आर सेइंग दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम वुड प्रोवाइड अ हेल्प फॉर द पॉलिटिकल इक्वलिटी. इस तरह से डेमोक्रेसी अगर होगी तो पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने में मदद मिलेगी. बट लेकिन some strategies, different strategies has to be designed to deal with the differences and economic inequalities. उनसे डील करने के लिए हमको कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी. और लिबरल्स के लिए inequality was not a problem. For liberals के लिए inequality was not a problem. उनके लिए unjust and entrenched, ENTRENCHED, ये जो खाई नुमा असमानता है, entrenched inequalities and unjust inequalities, अन्यायी असमानता है, they were the problem. And why? Because they prevent individuals from developing their capabilities. वो एक व्यक्ति को उसके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डेवलप करने से रोकती है. तो वो उनके लिए प्रॉब्लम थी. इनइक्वलिटी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी. दैट इज़ ऑल अबाउट द लिबरलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी. एज आई हैव टोल्ड यू वन वर्ड, socialism. So now we will talk about the socialism. एक socialism मार्क्सिज्म से ही मिलता जुलता था. इस एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ यहाँ पर. इट मे कम इन द एग्जाम. सो लेट्स स्टडी अबाउट द सोशलिज्म. सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है विच केम अबाउट इन रिस्पॉन्स टू द inequalities present in the society. समाज में जो असमानता मौजूद है उनको उनके रिस्पॉन्स में ये सामने आया था. एंड दिस सोशलिज्म वाज दिस inequalities were present in the society in the industrial capitalist economy. You have read about this industrialist capitalist economy in the class 9 chapter socialism in revolution in Russia. Capitalists, you know, those people who are worried only about their profit. जैसे अमेरिका is a capitalist economy और industrial मतलब related to industries. तो ये जो inequality जो थी वो that was present in the industrial capitalist economy और आगे भी ये continue रही. और सोशलिज्म जो फॉलो करते हैं उनके लिए जो मेन कंसर्न है for the society regarding the inequality is that minimize. Number one, उनके लिए मेन कंसर्न था तो minimize these existing inequalities in the society. And number two, they told that distribute the resources in a just manner. वो उनका मेन कंसर्न था. एक तो इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करो
समाज में जो मौजूद है, एंड सेकेंड वन डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इन अ जस्ट मैनर, न्यायपूर्ण तरीके से रिसोर्सेज को बांटो. Those people who were supporting the socialism, advocating, जो इसकी वकालत करते थे, they were not totally opposing to the market system. वो मार्केट सिस्टम के टोटली अपोज में नहीं थे. मार्केट मतलब आपको मालूम है, जाओगे ग्राहक जाएगा तो दुकानदार अपना फ़ायदा देखेगा, वो उसके टोटली अपोज नहीं थे. But this socialists were saying that government should make some rules and regulations, some plan and some control, have some control on some key areas. कुछ बहुत ही important areas जो हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेशन बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए. ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो प्राइवेट को नहीं दे सकते हैं. That is education and health care, which are very important for the development, और गवर्नमेंट को उसको लुक आफ्टर करना चाहिए. प्राइवेट पीपल प्राइवेटिज्म या जैसे वो उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे. वो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर दिस की एरियाज फॉर रेगुलेशन, फॉर प्लानिंग एंड फॉर कंट्रोल. इंडिया में one person was there, he was a socialist thinker. He gave some ideas on the socialism. Now I will tell you about that person. First of all, birth year and death year of that person. That person is Ram Manohar Lohia. Born on 23 March 1910, died on death was on 12 October 1967. He was very important socialist thinker. That is the pic of Dr. Ram Manohar Lohia. And he was a socialist. उन्होंने समाज के अंदर ही आइडेंटिफाइड इनइक्वलिटीज़, 5 टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़ को उन्होंने सोसाइटी में आइडेंटिफाई किया था. और उन्होंने बोला कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस इनइक्वलिटीज़ साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम. इन सब के खिलाफ हमको एक साथ लड़ना है. What are those 5 inequalities? Number 1, inequality between man and woman. Number 2, inequality based on the color of the skin. Number 2, caste based, that is the skin based color के हिसाब से inequality जो है, that is number 2. Number 3, caste based inequality. Number 4, inequality, colonial rule of some countries over the others. That is also inequality. उन्होंने इसको माना. And number 5, जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, that is economic inequality. वो इन्होंने इन 5 को जो है ये आइडेंटिफाई किया एज अ काइंड्स ऑफ inequalities. ये जो आइडिया है दैट अपीयर्स टू यू सेल्फ अप्रूविंग टुडे, आपको आज अपना आप स्वप्रमाणित लगता है कि इन्होंने अपना आप इसको मान लिया. लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोहिया, जब उनका जो टाइम पीरियड था फ्रॉम दैट वन आई टोल्ड ना, फ्रॉम 1910 to 1967, एट दैट टाइम among the socialists it was common thing to argue. लेकिन उस ज़माने में जो सोशलिस्ट थे उनके बीच में ये बहुत कॉमन था that to argue on the matter that class inequality was the only form of inequality. क्लास इनइक्वलिटी ही एक ऐसा फॉर्म है इनइक्वलिटी का और कोई दूसरा नहीं है. और वो कहते थे इसी के खिलाफ, अगेंस्ट दिस वन ओनली वी हैव टू डू अ स्ट्रगल. वो जो सोशलिस्ट थे आर्ग्यूमेंट के दौरान वो बोलते थे कि जो अदर इनइक्वलिटीज़ हैं वो मैटर नहीं करती है, दे डिड नॉट मैटर. और यू कैन से वंस यू अचीव वंस यू एंड द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन द कंट्री, अगर आपने एक बार देश के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को ख़त्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली द अदर इनइक्वलिटीज़ विल कम टू एन एंड. वो ये मानते थे कि दूसरी जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो
ख़त्म हो जाएंगी। लोहिया जो थे वो उन्होंने क्या बोला, ही टोल्ड दैट ईच ऑफ दिस इनइक्वलिटीज, उन्होंने बोला ये सारी जो इनइक्वलिटीज उन्होंने बताई है, दे हैव ऑल हैव गॉट दे हैड इंडिपेंडेंट रूट्स, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र जड़ें हैं बहुत गहराई तक, एंड इनके खिलाफ वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दैम सेपरेटली, उनके खिलाफ और साइमल्टेनियसली, इन सब के खिलाफ हमको अलग अलग से लड़ाई लड़नी है और एक साथ करनी है सबके साथ। राम मनोहर लोहिया जी is not speaking of revolution in the singular, वो एक अकेली क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग स्ट्रगल अगेंस्ट दिस 5 inequalities इन्वॉल्व ऑल द 5 revolutions। उनके अकॉर्डिंग ये सब जो रिवॉल्यूशन है पांचों inequalities के खिलाफ वो सब एक साथ चलेंगे। और उन्होंने राम मनोहर लोहिया ने 2 more inequalities को इसके अंदर ऐड किया है, he added 2 more revolutions to this list। इस लिस्ट के अंदर 5 रिवोल्यूशन के अलावा 2 और रिवोल्यूशन को उन्होंने ऐड किया है। नंबर 1 रिवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता की क्रांति। For what? For against unjust encroachment on private life, हमारे निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण तरीके से अतिक्रमण करना, किसी का हस्तक्षेप करना, उसके खिलाफ उन्होंने बोला देयर शुड बी सिविल लिबर्टीज। उसके लिए भी उन्होंने एक रेवोल्यूशन का आइडिया दिया है, रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज। एक रेवोल्यूशन उन्होंने और बोला था, दैट वाज रिवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस। मतलब वो कहते थे कि देयर शुड बी रिनंशिएशन ऑफ वेपन्स। रिनंशिएशन का मतलब होता है गिविंग अप, इसका एक सिनोनियम है द फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ समथिंग। उन्होंने बोला हमको वेपन्स को गिव अप करना है इन फेवर ऑफ सत्याग्रह, यू नो। तो वो नॉन वायलेंस के लिए भी एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। लाइक दैट ही इज टॉकिंग हियर अबाउट 7 रिवॉल्यूशंस, जिसको बोलते हैं सप्त क्रांति। और अकॉर्डिंग टू लोहिया जी दैट वाज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। यही जो सप्त क्रांति है, दैट इज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, दैट इज ऑल अबाउट द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। Now something about the what you say, how can we promote equality, how हम असमानता को कैसे how we will promote the equality। Till now we have studied the differences among the socialists and liberals for achieving the goal of equality, though there are some merits and limitations in the points given by this liberals and socialists। पूरे वर्ल्ड के अंदर there is a debate over this matter, but still there is a need to consider what principles and policies we should have to achieve the equality। खासकर we need some affirmative actions to justify for this purpose। हमको कुछ सकारात्मक एक्शन लेने पड़ेंगे, अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे फॉर दिस पर्पस टू ब्रिंग द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। और ये जो इशू है that has raised a lot of controversy in the recent years। हालांकि रिसेंट ईयर्स में इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उठे हैं, और वी विल डिस्कस दिस इशू in the coming matters। So point number 1 में अगर ये क्वेश्चन आता है तो what you have to write? Point number 1, establish a formal equality।
ये पॉइंट नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 45. एवरीथिंग इज गिवन. While you are studying this one, keep book with you, and line by line, book ke according whatever I am explaining, read the chapter, then listen to this lecture. It will become very clear. So first point, establishing formal equality, that is the first step. First step for bringing equality to end the formal system of inequality and privileges. असमानता और privileges जो है विशेषाधिकार, उनको ख़त्म कर दिया जाए. पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय सम कस्टम्स एंड लीगल सिस्टम्स. कुछ रीति रिवाज और कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं. उनको हमको प्रोबेट करना चाहिए, उन पर प्रतिबंधन लगाना चाहिए, सो दैट विच दिस स्पेशल प्रिविलेजेस which are being enjoyed by some section of the society can be stopped. मतलब उनको रोका जा सके. समाज के कुछ सेक्शंस जो है उनको कुछ रीति रिवाजों और कानून की वजह से वो ये जो एंजॉय कर रहे हैं उसको हम रोकना है हमको. Because what we have to do, we have to provide certain kinds of opportunities and rewards. हमको कुछ इसके लिए कुछ opportunities provide करनी पड़ेंगी, ये जो gap है उसके लिए कम करने के लिए. Poor people जो हैं उनको राइट टू वोट एक लंबे समय से बहुत सारे देशों के अंदर नहीं मिला हुआ है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग राइट टू वोट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और वीमेन जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक अप मेनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़. उनको बहुत सारे कार्य और गतिविधियों को करने से रोका जाता है समाज के कुछ रीति रिवाज और नियमों की वजह से. और कास्ट सिस्टम जैसे इंडिया के अंदर है, वो जो लोअर कास्ट को है जो है doesn't allow them to take some other activities except manual labor, कि आप मजदूरी करो, उसके अलावा उनको दूसरे काम करने से रोकता है कास्ट सिस्टम. वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज, कुछ ही फैमिलीज के लोग जो हैं दे कैन ऑक्यूपाई द हाई पोजीशंस. सो ये सब चीज़ें हैं जो इनको रोकना है. और इफ़ यू वांट टू अटेन इक्वलिटी, अगर आपको इक्वलिटी हासिल करनी है तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और प्रिविलेजेस हैं टू सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सम कस्टम एंड लीगल सिस्टम, दैट शुड बी एंड, उसको ख़त्म करना है. और मैनी इनमें जो ये जो लीगल सिस्टम और कस्टम है, ये जो दे आर सैंक्शन बाय द लॉ, कानून से इसको सैंक्शन किया गया है. सो इक्वलिटी ये कहती है दैट गवर्नमेंट एंड द लॉ ऑफ द कंट्री शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दिस टाइप ऑफ दिस सिस्टम्स ऑफ इनइक्वलिटी. उनको उसको रोकना है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही किया है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश कर चुका है. और आज मैक्सिमम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं दे हैव एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इट. उन्होंने अपने अंदर इसको शामिल भी कर लिया एज एन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. सबको समान वेयर करना है बाय द लॉ to all the citizens of the people without doing the consideration on the basis of the caste, race, religion or gender. Now that is all about the number 1, how can we promote equality. Now number 2, equality through differential treatment. इसमें what you have to tell here, आंसर पेज नंबर 45 से लेकर 46 तक एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर दिस वन. इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है,
ये नेसेसरी है बट नॉट, ये ज़रूरी है, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, बट नॉट सफिशिएंट टू रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को पाने के लिए काफ़ी नहीं है। कभी कभार वी हैव टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, लोगों को हमें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स, ताकि वो सब लोग बराबर इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। इसलिए हमको कुछ लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है, और हमको ऐसे कुछ डिफरेंसेस को कंसीडर करना पड़ता है टू प्रमोट द इक्वलिटी। सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनको हमको देखना पड़ता है इसी पर्पज से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डिसेबल पीपल जो होते हैं, हैंडीकैप पीपल जिसको दिव्यांग बोलते हैं, दे कैन डिमांड स्पेशल रैम्प्स यू नो, एक ढलान वाली जगह। ये जो डिसेबल पीपल हैं वो पब्लिक स्पेयर के अंदर रैम्प्स की डिमांड कर सकते हैं, सो दैट दे कैन हैव द इक्वल चांस टू एंटर इनटू द पब्लिक बिल्डिंग्स, ताकि उनको पब्लिक बिल्डिंग में एंटर करने में बराबर का मौका मिले। एक और तरीका, वन मोर वे, women those who are working in the call centers at the time of night, they may require some special protection when they are doing the journey to their office, to their center, and from their center to their home. So ये ज़रूरी है for their right to work, और like that हम लोग उनके right to work को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर सही है यहाँ पर, एंड इसको दैट शुड नॉट बी टेकन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वलिटी। उससे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वलिटी नहीं माना जाए। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ। आप इसको कोई वायलेशन नहीं माने, कोई कानून का इससे समानता का हनन हो रहा है या वायलेशन, और उसको नहीं माना चाहिए, बट इट शुड बी टेकन एज एनहांसमेंट ऑफ इक्वलिटी। इससे हम समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस हिंडर मतलब होता है रुकावट। किस तरह की डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक्सेस है उसमें प्रॉब्लम दे रही है, और व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज शुड वी हैव टू ओवरकम दिस हिंड्रेंसेस। ये वो क्वेश्चन है जो आज डिस्कस हो रहे हैं। एक तो कौन से वो डिफरेंसेस हैं जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुसीबत बन रहे हैं, उसमें रुकावट बन रहे हैं, एंड क्या पॉलिसीज़ हमको बनानी चाहिए टू ओवरकम दिस हिंड्रेंसेस आर द क्वेश्चन विच आर बीइंग डिस्कस्ड टुडे इन ऑलमोस्ट इन ऑल द सोसाइटीज़ टुडे। कुछ कंट्रीज़ ने तो they have used some policies of affirmative action, सकारात्मक एक्शन लेने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठा लिए हैं टू प्रमोट इक्विटी और अपॉर्चुनिटी। हमारे देश के अंदर भी यू नो दैट वी आर रिलाइंग ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। और सो इन द नेक्स्ट सेक्शन जो उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट द इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन टू प्रमोट द दिस वन इक्वलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दैट थर्ड पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वन।